Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are doing unit 10 circles of your NCERT book, and till now we have done 10.1 theorem, in which we have learnt that radius of a circle is perpendicular to the tangent to that circle at point of contact. And then we have done 10.1 exercise. Now let us start with 10.2 theorem, which says, so the theorem is given to us on page number 211, and the statement of the theorem is the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. So let me first of all explain you. The length of the tangents means एक से ज़्यादा tangent है, tangents drawn from an external point means दोनों एक ही external, an means एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए हैं टू अ सर्कल, एक ही सर्कल पर हैं। तो हमने एक पॉइंट पी लिया जिससे एक टेंजेंट पी क्यू बनाया और पी आर बनाया सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, और सेम सर्कल पर ये टेंजेंट बने, तो इनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल मीन्स वी हैव टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. Now dear students, to prove that these two tangents are equal, we need to do some construction also. So what is that construction? Join the center with external point OP, then make the radius OQ OR as Q and R on the circle and O is the center. तो जब हम join करेंगे ये radius मिलेगा हमें यहाँ भी. So join OP, OQ and OR. This is the construction. Now to prove the two tangents equal, you can see in the figure, by joining this external point to the center, we have obtained two triangles. You can see the two triangles, triangle POQ and POR. If we will prove these two triangles congruent, then by CPCT, PQ and PR, the two tangents will automatically become equal. So our target is to prove these two triangles congruent. So briefly let me explain you. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी नो फ्रॉम थ्योरम 10.1 वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो ये एंगल आर है, और इसी तरह ओ क्यू इज द रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पी क्यू. तो दोनों ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ईच 90. देन ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल की साइड ओ क्यू और इसके साइड ओ आर, बोथ आर इक्वल टू रेडियस. तो ये दोनों लेंथ क्या होंगी? सेम होंगी. तो हमें तीन पार्ट मिल गए. हमें सबसे पहले एक एंगल हमने यूज़ किया, देन वी हैव यूज्ड दिस साइड विच इज़ इक्वल टू रेडियस, देन वी हैव यूज दिस साइड विच इज़ द कॉमन साइड. तो क्या आर एच एस लग सकता है? राइट एंगल, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, यस वी हैव यूज्ड, एंड एनी वन साइड, ईदर दिस और दिस. तो ये बाय आर एच एस two triangles are congruent. Therefore, by CPCT, PQ is equal to PR. Now, just pause the video and prove this proof once yourself. So, by the time, let me prove this for you also. So, we will write in triangle, the first one POQ and triangle POR. Now, POQ is एंगल Q ले लेते हैं, राइट एंगल, विच इज इक्वल टू एंगल R, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. राइट, शॉर्ट में हमने स्टेटमेंट लिख दी. देन राइट एंगल हाइपोटेन्यूज OP is equal to OP, we will write common for this. Then OQ which is radius and OR which is radius. OQ is equal to OR. So इसके लिए रीजन आएगा each radii. Therefore, by RHS, triangle POQ is congruent to triangle POR. This implies the two sides PQ is equal to PR. And what is the reason? By CPCT. और ये दोनों साइड्स क्या हैं? These are the tangents of the circle. This is what we have to prove, that the tangents drawn from the same external point. एक ही पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट है, एक ही सर्कल पर बनाए हैं दोनों. तो जब एक ही पॉइंट से बनाए होंगे तो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे? इक्वल.
So hence proved. We will write hence proved. So I hope the theorem is very much clear to you. Out of the two theorems from this chapter, one theorem is sure to come in the exam. So now let's start with 10.2 exercise. Now dear students, we have two concepts. दो कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में मिल गए हैं. तो जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको दिखे, दोनों कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आने चाहिए. दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड both the tangents are equal if they are drawn from the same external point and to the same circle also. तो दो पॉइंट ही हैं. इसके अलावा जो हमें बाकी प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी हुई हैं, वी विल यूज दैम. सो फ्रॉम अ पॉइंट Q, question number 1, 10.2 exercise, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius we have to find out. So from a point Q point से बना रहे हैं बेटा. Q from the length of the tangent to a circle. Length हमें दे रखी है 24 centimeter to a circle is this, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Distance of Q point from the centimeter is 25 centimeter and we need to find out the radius. Now as I told you dear students, that in this chapter always keep the two results in your mind. One is radius perpendicular to tangent and the two tangents from the same external point are equal. तो यहाँ पर ये रेडियस है और ये हो गया टेंजेंट, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे. नाउ आई होप अब आपको पता चल गया होगा ये कैसे सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? यस टेल मी. यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी? जो 90 के सामने. दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर एंड बेस. यू कैन टेक ईदर ऑफ द साइड. तो इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर एंड यू विल मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. So by solving, by applying the Pythagoras theorem on this, we will get radius is equal to 7 centimeter. Dear students, यहाँ पर आपके माइंड में एक शायद कन्फ्यूजन आए कि हम रूट को सॉल्व कर रहे हैं. वी मस्ट गेट द टू वैल्यूज प्लस एंड माइनस. बट एज वी नो रेडियस इज द लाइन सेगमेंट. यहाँ पर रेडियस का एक लाइन सेगमेंट और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती. जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स हैं लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या पॉलिनॉमियल्स हैं, दो रूट्स होते हैं, दो ज़ीरोज़ होते हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव रूट्स भी चलते हैं, पॉजिटिव भी. नेगेटिव कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, पॉजिटिव. सो दैट्स वाई वी विल टेक टू वैल्यूज़ फ्रॉम द स्क्वायर रूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बट इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेंथ एंड लेंथ कांट बी नेगेटिव, सो वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू. सो option number A is correct for this question. Now let's see question number 2. Now question number 2 in figure 10.11, if TP and TQ are two tangents. देख रहे हैं आप, T दोनों में आ रहा है, मीन्स सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए हैं. Are two tangents to a circle with center O and so that angle POQ is given to us 110 degree, then angle PTQ is equal to, we need to find out this T angle. पी टी क्यू, सेंटर में टी है तो टी एंगल फाइंड आउट करना है हमें. तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, लेट अस सी. इन दिस फिगर बेटा आपको क्या करना है? पहला तो आपको एज आई टोल्ड यू कि दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. सो क्यू इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, तो दोनों ये 90 होंगे. सेम हेयर, दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, तो ये एंगल भी 90 होगा. नाउ वी आर लेफ्ट विद एंगल टी, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. तो आप देख सकते हैं इस फिगर की 4 साइड्स बन रही हैं, 1 2 3 4, मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. और क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो इन दिस क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री, जिसमें से एक एंगल ओ हमें गिवन है. एंगल पी और क्यू 90 ले लेंगे बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों एंगल 90 आ गए. तो यहाँ से हम टी एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे विच विल इक्वल टू 70 डिग्री. वेरी इजी. तो इसी तरह आपसे ये एंगल भी पूछा जा सकता है, आपको ये दे दें और ये पूछ लें. तो इन दोनों का सम तो 180 ही हमेशा रहेगा. आप डायरेक्ट भी जब MCQ फॉर्म आती है हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों तो ऑलरेडी 180 सम देंगे हमेशा ही. इन दोनों का भी फिर क्या होगा? 180
प्लस 180, 360 सम। तो हम सीधा 180 माइनस ये कर दूंगे तो ये मिल जाएगा, 180 माइनस ये कर दूंगी ये। बट हमारा वो कोई रूल नहीं है, रूल हमारा क्या चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर फ्रॉम अ पॉइंट पी, कौन से पॉइंट से बनाए जा रहे हैं, पी से, और दो टेंजेंट मीन सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहे हैं, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एन टू एन 80 डिग्री, मीन्स ये दोनों, ये जो 80 डिग्री एंगल है ये टेंजेंट्स के बीच का एंगल है। वी नीड टू फाइंड आउट एंगल पी ओ ए। तो दीज आर द टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये हमें दे रखा है ये पूरा एंगल। वी नीड टू फाइंड एंगल पी ओ ए। बेटा अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि ये पूरा एंगल हम निकालना चाहें तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लें हम, राइट। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से पूरा एंगल मिल जाएगा। अब ये पूरा अगर हमें एंगल मिल जाता है तो ये एंगल उसका हाफ होता है। वाई? क्योंकि हमने 10.2 थ्योरम में देखा था कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो होती हैं बाय राइट एंगल, कॉमन साइड एंड रेडियस, बाय आरएचएस प्रॉपर्टी, ये दोनों क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये जितना एंगल है उतना ही ये एंगल आएगा, और ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। द सम ऑफ दीज टू एंगल इज़ 180। तो 180 को 360 में से हम पहले ही माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 180। उस 180 में से अगर हम 80 माइनस करते हैं तो विल गेट दिस कंप्लीट एंगल ए ओ बी। और क्योंकि बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो 100 का हाफ क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो इस तरह से यू विल गेट एंगल पी ओ ए एज 50 डिग्री। सो डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन योर सेल्फ ऑल्सो। कैसे करोगे, अगर तो 3 मार्क्स में आता है तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू प्रूव बोथ द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ऑल्सो, देन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देन आप इसका हाफ लेंगे। बट फॉर MCQ यू कैन डू द डायरेक्ट कि ये पूरा 80 है तो ये पूरा कितना हो गया 100, 100 का हाफ कितना हो गया 50। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो बहुत ध्यान से करने हैं अब ये क्वेश्चंस। प्रूव दैट द टेंजेंट्स, दो टेंजेंट ले रहे हैं, ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो हमने एक सर्कल लिया, उसका डायमीटर हमने ले लिया AC, एज इट इज़ द डायमीटर इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर। तो अब बोल रहे हैं कि टेंजेंट्स बनाए हैं एट द एंड ऑफ द डायमीटर। इस डायमीटर का एक एंड C है तो एक टेंजेंट यहाँ बनाया, एक एंड A है तो एक टेंजेंट यहाँ पर। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। मीन्स ये और ये टेंजेंट हमें दोनों क्या प्रूव करने हैं, पैरेलल प्रूव करने हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग देम पैरेलल। सो डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, या तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखा दें, या को इंटीरियर एंगल्स दिखा दें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा दें। अगर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा देते हैं तब भी हम बोल सकते हैं द टू लाइन्स आर पैरेलल। को इंटीरियर एंगल्स मीन्स इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर उनका सम 180 दिखा दें तो भी ये पैरेलल हो जाएंगे। सो मीन्स वी कैन यूज़ ईदर ऑफ द वे, चाहे ऑल्टरनेट यूज़ कर लें चाहे को इंटीरियर। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ द डायमीटर, तो OC क्या हो जाएगा, रेडियस, OA भी रेडियस होगा। और हमारी थ्योरम क्या कहती है, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ भी रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर ये 90 है, इधर वाला भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो दैट मीन्स द टू लाइन्स मस्ट बी पैरेलल। या फिर हम ये ना लेना चाहें, हम को इंटीरियर एंगल्स ले सकते हैं। एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या मिल जाएगा हमें, 180। तो अगर 180 समय मीन्स ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, तब भी ये दोनों लाइंस अगर को इंटीरियर एंगल्स मीन्स द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज़ 180, तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो चाहे बेटा आप ऑल्टरनेट इंटीरियर यूज़ करो या फिर को इंटीरियर यूज़ करो, इट इज़ योर विश।
तो मैं आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से बताने जा रही हूँ. सो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे सी डी एंड ए बी आर टू टेंजेंट्स एंड ए सी इज़ द डायमीटर. We need to prove CD, the first tangent, is parallel to the second tangent which are drawn at the end of diameter. तो proof में लिखेंगे that OC is perpendicular to CD and OA is also perpendicular to AB. Reason दोनों का common because radius is perpendicular to the tangent. Radius perpendicular होता है tangent के. So this implies, मैंने यहाँ पे चाहे मैं पूरे एंगल का नाम लिख दूँ, एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OA, इधर नाम दे दें हम कुछ भी, लेट इट बी ई पॉइंट, O एंगल OAE. तो ईच इज बोथ इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस इम्प्लाइज, अगर दोनों ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, सो दिस इम्प्लाइज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. इंटीरियर angles are equal. और अगर ये equal हैं, this implies CD, the first tangent, is parallel to the second tangent AB. So I hope it is clear to you. Parallel lines की कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा. So that's all for now. Thank you my dear students.